Good morning students. How are you? Once again welcoming history class. I hope you all are doing work in the proper way. So which chapter is going in history? Print culture and the modern world. We have discussed how the earlier printing was developed in China, Japan and Korea, and after that Europe and other countries. So before that paragraph we have seen print revolution and its impact, and who developed the printing press? Johann Gutenberg. Belongs to which country? Germany. Or in which year it was developed? 1430. So today we will discuss about how when the printing press was developed by the Johann Gutenberg. So what impact, what revolution started in the print revolution, and how that print revolution affected the people's lives. So what happened? New ways of producing books. Before that, what they were doing? Hand printing books. Hand printing. Yani scribes were written at that time. But now what happened? After the printing press, new way of producing books. Now books are producing with the help of a machine. So lives of people transformed. It means according to that, when the books were producing with the help of machines, so yani that lives, yani that totally changed the lives of the people. How? As information and knowledge were easily available. How? Now what happened? Now people can gather all the informations and knowledge easily, because now books were available easily. Opened up new way of thinking and looking at things. अब इससे क्या चेंज हुआ? लोग अपने हिसाब से सोचने लगे कि what is right and what is wrong with us and what is happening, and looking at things, और चीजों को अपने नजरिए से देखने लगे कि क्या चीज हमारे लिए सही हो सकती है और क्या गलत हो सकती है, क्योंकि अब उनके आइडियाज क्या हो गए? बुक्स पढ़ने से ओपन, अब हर विचार को अपने हिसाब से सोचने लगे. विद द कमिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, रीडिंग पब्लिक अमर्ज, यानी कि वह प्रिंटिंग प्रेस के तो व्हाट हैपेंड? न्यू रीडिंग पब्लिक अमर्ज, यानी कि एक नया वर्ग पैदा हुआ पढ़ने के लिए. प्रिंटिंग, और व्हाट हैपेंड दैट प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. बट बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस व्हाट हैपेंड? दैट टाइम बुक्स कॉस्ट वाज वेरी हाई and time consuming also, but now with the help of printing press we have reduce the cost of books, time also save, and labor. At that time who has written the manuscript? Mainly scribes were written, thus more number of books were printed. Now with the help of printing press they produce more and more books. Earlier reading was restricted to elites. Elites mean only kings, we can say that queen, या rich people, especially only rich people can read the books. But and common people were in oral culture. Oral culture मतलब गैदरिंग में जैसे 14 या 15 या वी कैन से दैट 14-15 पीपल बैठे हुए हैं, एक खड़ा होके अपनी बात सबको बता रहा है कि ऐसे हो रहा है सोसाइटी में, हमें ऐसे करना चाहिए. वो सभी लोगों तक अपनी बात जो पहुंचा रहा है. तो यानी कि जो कॉमन पीपल थे वो किसमें थे? ओरल कल्चर, यानी कि सुनते थे, वो पढ़ नहीं सकते थे, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द बुक्स दैट टाइम. न्यू बुक्स कुड रीड वाइडर सेक्शंस, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस डेवलप से होने से क्या हुआ? न्यू बुक्स कुड रीच वाइडर सेक्शन. वाइडर सेक्शन का मतलब नॉट ओनली रिच पीपल कैन परचेज, नाउ कॉमन पीपल कैन ऑल्सो परचेज. हियरिंग पब्लिक, अब क्या चेंज आया प्रिंटिंग प्रेस होने से? जो लोग सुनते थे, हियरिंग पब्लिक, अब हियरिंग पब्लिक किसमें चेंज होगी? रीडिंग बुक्स, यानी कि वो अब जो सुनने वाले लोग थे, पब्लिक थे, जनता थी, अब उन बुक्स को क्या करने लगी? खुद पढ़ने लगी. तो इससे उनके क्या है, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ट्रांजिशन, changing period. But that transition was not easy. Why? Because that time in Europe literacy rate was very low till 20th century, यानी कि up to 20th century literacy rate was very low in Europe, और books could be read only by literate, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे लोग थे वो ही बुक्स को पढ़ सकते थे. So printing press started publishing. तो what happened? इनको ध्यान में रखे प्रिंटिंग प्रेस व्हाट दे हैव स्टार्टेड? दे स्टार्टिंग बैलेड्स एंड फोक टेल्स एंड बुक्स फुल ऑफ पिक्चर्स, यानी कि जो भी सॉन्ग्स, पोएम्स, या वो जो भी कहना चाहते थे, लोगों तक मैसेज देना चाहते थे, इंफॉर्मेशन या नॉलेज, अब वो किसके थ्रू देने लगे? फुल ऑफ पिक्चर्स. एंड हाउ दिस बैलेड्स एंड फोक टेल्स वर रिसाइटेड एट गैदरिंग्स, यानी कि बैलेड्स एंड फोक टेल्स वर रिसाइटेड एट गैदरिंग्स. तो इट मीन्स प्रिंट रिवोल्यूशन स्टार्टेड एंड इट्स इम्पैक्ट द people's lives totally. Now we will discuss the next paragraph. Now we will discuss religious debate and fear of print.
प्रिंटिंग क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने से क्या पॉसिबिलिटी हुई, क्या लोगों तक सर्कुलेट होने लगा आइडियाज, ज्यादा लार्ज स्केल पर, ज्यादा से ज्यादा लोग अब आइडियाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके आइडियाज सर्कुलेट होने लगे विद द हेल्प ऑफ बुक्स। इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, अब लोग उन आइडियाज को पढ़कर क्या करने लगे, दे स्टार्टेड टू डिबेट एंड डिस्कशन, अब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिबेट करने लगे कि ये सही है या गलत है, डिस्कशन करने लगे भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नॉट एवरीवन वेलकम प्रिंटेड बुक्स, ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग का सभी ने स्वागत किया, नो, नॉट एवरीवन वेलकम, दोज हु डिड हैड ए फियर अबाउट इट, अब कुछ लोगों ने इसका स्वागत नहीं किया प्रिंटिंग प्रेस का, उनके मन में कहीं ना कहीं डर था, क्या डर था, फियर, इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर, उनके मन में ये डर था, इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड, कि सबसे पहले तो उनको डर था कि जो प्रिंट हो रहा है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, अगर कंट्रोल नहीं है तो रिबेलियस थॉट्स माइट क्रिएट, तो इसके लोगों में क्या विचार आ जाएंगे, क्रांतिकारी विचार डेवलप होने लगेंगे, और ऑल्सो रिलीजियस थॉट माइट ऑल्सो स्प्रेड, रिलीजियस थॉट मतलब लोग अब किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करेंगे, चर्च के ऊपर, चर्च की सुपरमेसी है, अब लोग क्वेश्चंस करेंगे कि क्या चर्च हमसे सुपीरियर है, कि हम चर्च की ही बात क्यों माने, जो रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं हम उसको ही क्यों फॉलो करें, तो यानी दैट फियर वाज क्रिएटेड। नाउ इन 1957 ए रिलीजियस रिफॉर्मर, who was the religious reformer, Martin Luther wrote about 95 theses, अब इसने क्या लिखा, एक रिलीजियस रिफॉर्मर था, 95 थीसिस, मेनली इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया 95 थीसिस में, क्रिटिसाइजिंग मैनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, यानी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च जो प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, उनकी आलोचना की है कि सही नहीं है, दीज आर नॉट करेक्ट, चैलेंज और ओपनली चैलेंज, और ऊपर से उन्होंने क्या किया, जो 95 थीसिस थी, तो चर्च का जो मेन गेट था विटनबर्ग में उसके ऊपर हैंग कर दी ताकि आने और जाने वाले इस थीसिस को प्रॉपरली पढ़ सके और चर्च की सुपरमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सके और क्रिटिसाइज कर सके कि जो वहां पर प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे चर्च के द्वारा। चैलेंज द चर्च, ओपनली ही चैलेंज द चर्च टू डिबेट ऑन हिज आइडियाज, उन्होंने ओपनली चैलेंज कर दिया चर्च को, यू कम एंड डिबेट ऑन माय आइडियाज। थर्स लूथर राइटिंग्स वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स एंड वाज वाइडली रेड, अब क्या हुआ, राइटिंग्स वर प्रिंटेड, यानी कि जो लूथर्स की जो राइटिंग्स थी, राइटिंग वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स, राइटिंग्स का मतलब क्या, जो उन्होंने लिखी थी, न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और हाउ मेनी कॉपीज सोल्ड विद इन ए फ्यू वीक्स, 5000 कॉपीज सोल्ड, एंड आफ्टर दैट 3 months अगेन दैट सेकेंड एडिशंस अपीयर, तो यानी कि विद इन ए फ्यू वीक्स, यानी कि इसका आइडियाज इतना पॉपुलर हुआ कि एक मतलब कुछ ही हफ्ता में, फ्यू वीक्स में ही न्यू टेस्टामेंट की कितनी कॉपीज सोल्ड हो चुकी थी, 5000, और सेकेंड एडिशन कब अपीयर हुआ, आफ्टर 3 months, एंड दिस लेड टू व्हेन Martin Luther King challenged to the church, तो what happened that, what result came, this led to Protestant Reformation, तो इसकी वजह से क्या स्टार्ट हुआ है, Protestant Reformation, what is the meaning of Protestant Reformation, movement to reform Catholic Church, यानी कि किसके अंदर रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट चलाया गया था, कैथोलिक चर्च। Luther said कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, कि प्रिंटिंग क्या है, एक श्रेष्ठ उपहार है जो किसके द्वारा मिला हुआ है, गॉड ने दिया है, ग्रेटेस्ट, इससे अच्छा और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता भाई, बिकॉज इट हेल्प टू स्प्रेड आइडियाज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से क्या होने लगा, आइडियाज अब क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, नाउ एवरीबडी कैन रीड द बुक्स एंड आइडियाज। इन द 16th centuries मैनुकियो यानी कि मिलर मतलब फार्मर इन इटली began to read also books, and one day he read Bible, or what was the message written in the Bible, view of God and their creations, तो he reinterpreted the message, इन्होंने क्या किया, मैनुकियो ने इस मैसेज को रीइंटरप्रेटेड कर दिया, अपने हिसाब से कर दिया, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, रोमन कैथोलिक चर्च गॉट एंग्री, रोमन कैथोलिक चर्च इससे क्या हो गया, गुस्से में आ गया, और इसे गुस्से में आकर इन्होंने क्या कर दिया, इसको मैनुकियो को मृत्यु दंड दे दिया, executions, and after that what happened, what steps taken by the Roman Catholic Church,
इम्पोज ए सीरियस कंट्रोल। अब इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने किसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया? पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। एंड इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558, यानी कि फ्रॉम 1558 से जो भी बुक्स के ऊपर हम जो रोक लगा रहे हैं, प्रोहिबिटेड कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, उनका इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया। और दे मेंटेन ए रजिस्टर, दे स्टार्टेड टू बिगिन ए रजिस्टर, यानी कि इसके लिए इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? रजिस्टर, कि कौन सी बुक को हमने प्रोहिबिटेड किया है और कौन से ईयर से बनाना शुरू किया इन्होंने? 1558 से, ताकि किसके ऊपर कंट्रोल हो सके? इससे पब्लिशर्स और बुक सेलर को, यानी कि अब वही बुक पब्लिश होंगी जो वो चाहेंगे उनके अकॉर्डिंग। प्रोहिबिटेड कर दी उन बुक्स को पब्लिशर्स या बुक सेलर, जब पब्लिश नहीं होंगी तो बुक सेलर्स कहाँ से सेल करेंगे? तो यानी कि कौन से ईयर से करना शुरू कर दिया इन्होंने? प्रोहिबिट मेक्स इंडेक्स 1558। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस द रीडिंग मेनिया। मेनिया मतलब वी कैन से द एंथुसियाज्म, उत्साह या पागलपन, एक जुनून सवार होना पढ़ने के लिए। एंड हाउ इट वाज डेवलप्ड इन 17th and 18th centuries. Literacy rate went up in most parts of Europe. And how it is possible? How? And in the 17th and 18th centuries, literacy rate went up in most parts of Europe because a church was setting up schools in village area. Now church, what happened? And they were setting up new schools in the village area. So what happened when they were setting up the new schools in the village? Even peasants and artisans had education access. It means farmers और जो artisans थे वो भी अब एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करने लगे, उन तक पहुंच हो गई शिक्षा तक। एट द एंड ऑफ 18th centuries, बट एट द एंड यानी कि 17th और 18th centuries में व्हाट दे वांट टू से है कि लिटरेसी रेट वेंट अप, बट इन द 18th and the end of 18th century literacy rate went up to 60 to 80%, यानी कि up to at the end of 18th centuries what was the one of the literacy rate? Up to 60 to 80% can read and write there. Now booksellers started employing peddlers. पेडलर्स का मतलब क्या होता है? जो घूम घूम कर किसी सामान को बेचता है। तो अब बुक सेलर ने किनको हायर कर लिया? बुक सेलर स्टार्टेड एम्प्लॉय, यानी उनको काम देने लगे, किनको? पेडलर्स को। किसके लिए? बुक्स घूम घूम कर बेचने के लिए। तो पेडलर्स यूज्ड टू सेल बुक्स। पेडलर्स क्या बेचते थे? बुक्स, कैलेंडर्स, बैलेट्स, फोक टेल्स एटसेट्रा। इन इंग्लैंड पेनी चैपबुक्स, इंग्लैंड में क्या कौन सी बुक फेमस थी? चैप बुक। चैप बुक होती है पॉकेट स्मॉल साइज बुक्स, यानी फिर पॉकेट में उसको रख सकते, इतनी छोटी। वर फेमस एंड पेडलर्स वर कॉल्ड चैपमैन, और जो उस बुक को घूम घूम कर बेचते थे वो क्या कहलाते थे वहां पर इंग्लैंड में? पेडलर्स को क्या बोलते थे? चैपमैन। और सिंस दिस चैप बुक सोल्ड फॉर ए पेनी, और क्या था ये? चीप रेट पर अवेलेबल थी फॉर ए सिंगल पेनी, 1 पेनी, यानी कि पेनी का मतलब क्या है? ए ब्रिटिश ब्राउन क्वाइन, यानी कि ब्रिटिश का क्वाइन, यानी कि तो इट मीन्स इवन पुअर पीपल कैन ऑल्सो इजिली परचेज। तो इट मीन्स इन इंग्लैंड विच बुक वॉज फेमस? चैप बुक्स। चैप बुक्स मीन्स पॉकेट स्मॉल साइज बुक्स वर फेमस एंड दैट हु सोल्ड इट? चैपमैन, और दिस चैप बुक्स वर सोल्ड बाय फॉर ए पेनी। इन फ्रांस द बिब्लियोथेक ब्लू, what was the name of that book? Bibliothèque Bleue. Were low price books, that was also a low price books, printed on, क्यों low price पर ये बुक्स थी? Because printed on poor quality paper, क्योंकि जो उसका पेपर की जो क्वालिटी थी वो अच्छा नहीं था। And bound in cheap blue color, और उस कलर में बाउंड की जाती थी, इसको कवर किया हुआ था ब्लू कलर में। तो what was the name of the France book that was sold by the peddlers? Bibliothèque Bleue. और in England that was sold by the Chapman Chap books. Now after that what happened? Newspapers and journals carried information. Now newspapers and journals were also published and they were giving the information about the war and trade. वो भी अब किसके बारे में information देने लगे? What is happening around you regarding war and trade also. The ideas of scientists and philosophers became more accessible. अब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने से क्या हुआ? जब लोगों के अंदर रीडिंग मैनिया, उत्साह आ गया पढ़ने का, तो नाउ व्हाट दे वर डूइंग? द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स बिकेम मोर एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब पहुंच जाना, उनकी पहुंच तक बनना। टू द कॉमन पीपल द डिस्कवरीज ऑफ आइजैक न्यूटन, यानी जो आइजैक न्यूटन की जो डिस्कवरीज थी, एंड द राइटिंग्स ऑफ द थिंकर्स लाइक थॉमस पेन, वोल्टेयर वर वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। अब यानी कि जो
आइडियाज थे, जो डिस्कवरीज होने लगी और जो थिंकर्स के जो आइडियाज थे उनको लोग अब ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होने लगे, और प्रिंट होने लगे तो वो क्या होने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ने लगे, क्योंकि अब यहाँ पर लिटरेसी रेट कितना पहुंच गया था, 60 to 80%. Now we will discuss the next topic. Mid of 18th century. What happened in the mid of the 18th centuries? People believed that books could change the whole society. आपको peoples what they were thinking now कि books would change the society. How? Books would liberate. Liberate का मतलब free. Free हमें आजादी दिलवाएंगे us from the society where there is a despotism and tyranny. इस बुक्स क्या करेंगे हमें, दे विल प्रोवाइड अस फ्रीडम फ्रॉम द सोसाइटी वेयर क्या रूल करा, डिस्पोटिज्म मतलब वन पर्सन, यानी कि डिक्टेटरशिप वी कैन से वन पर्सन इज हैविंग ऑल द पावर्स इन हिज हैंड, और ट्रेनिंग मतलब यानी कि ही इज यूजिंग ऑल द पावर्स, यानी कि उस पावर को क्या कर रहा है, अपने आप यूज करना है, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है, लोगों को ऊपर इस पावर का यूज करके क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है. तो लुइसी सेबेस्टियन दैट वाज ए नॉवलिस्ट इन द 18th century declared कि printing is the most powerful engine of progress, यानी कि according to Louis Sebastian कि printing is the most powerful engine of progress and public opinion एक ऐसा पावर है और ऐसा फोर्स है that will despotisms away, यानी कि with the help of printing they can remove the despotism system. How they will do, क्योंकि उन्होंने पास्ट का जो इतिहास पढ़ा है उससे लोगों से पढ़ के उनको इंस्पिरेशन मिली, इनको एक सकारात्मक सोच मिली कि जब अदर कंट्रीज के पीपल अपने शत्रु को भगा सकते हैं तो उनके मन में भी आइडिया जाए कि तो हम अपनी कंट्री से डिस्पोटिज्म को क्यों नहीं दूर कर सकते हैं. नाउ प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Many historians argued print culture created the condition. According to many historians think that कि print culture created the, यानी कि print culture की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. How? Arguments given to prove this point. इसके लिए they have given 3 arguments, 3 points they have given. First, print popularized the ideas of thinkers. These were the 2 main thinkers. We can say the Voltaire and Rousseau. They attacked on, किसके ऊपर लिखना शुरू किया उन्होंने, they attacked on the church and the despotic power. लोग भी ये सोचने लगे कि अटैक द चर्च, ये इनके लेख पढ़ने लगे, सोचे कि हाँ रियली चर्च हमारे ऊपर क्यों सुपीरियर है, वही सारी पावर का क्यों यूज कर रहा है, डिस्पोटिक मतलब ऑटोक्रेटिक जो रूल है, जो डिक्टेटर पावर है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. तो यानी कि धीरे धीरे यानी कि थिंकर्स के आइडियाज को डेवलप करने में किसने हेल्प की, प्रिंट ने. सेकेंड, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, यानी कि व्हेन द प्रिंट कल्चर डेवलप so automatically what new ideas developed, now people were discussing, debating to each other, people became aware and existing ideas and beliefs were being questioned. Now what they were thinking, अब लोग जो पुराने विचार थे या जो आइडियाज थे जो एग्जिस्टिंग पहले से थे उनके ऊपर क्वेश्चंस मार्क लगाने लगे कि these ideas really good for us or not, क्या ये हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं है, अगर हम इन आइडियाज बिलीव्स को फॉलो कर रहे हैं तो why we are following, and now they have started the questioning about these ideas and beliefs. By 1780s, आप कहते by 1780 what happened, because 17 in which year French Revolution started, 1789. Lot of literatures published started mocking the government, यानी कि most literature now what they had done, they started the criticizing the government and started the questioning the government. और किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया, लिटरेचर ने ऑन द गवर्नमेंट पर. नाउ दैट टाइम वी नो बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल. नाउ द कॉमन पीपल वर थिंकिंग कि व्हाई वर वी आर पेइंग ऑल द टैक्सेस, व्हाई clergy and noble people were not paying the taxes and they are having the special privileges, yeah we can say that special rights, and why we don't having the these types of rights. But this type of question government was not having any answer, so it means that's why the literature started and criticizing the government and questioning the government कि why the common people is paying all the taxes and why all the benefits enjoyed by the clergy and the nobility. So with the help of literature what happened, लिटरेचर हेल्प स्प्रेड ऑफ आइडियाज, यानी कि लिटरेचर से डेवलप होने से क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ आइडियाज
एंड ओपन पीपल्स माइंड। अब लोग ओपनली सोचने लगे कि जो एग्जिस्टिंग रूल है वो सही है या नहीं है, हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली, यानी कि लोगों ने किसके आधार पर सोचना शुरू कर दिया, लॉजिकली मतलब तर्क के साथ कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है, यानी कि डिबेट और डायलॉग करके वो बातों को एक्सेप्ट करने लगे। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक।